شہرنامے میں خوش آمدید۔ شہرنامے کی خبروں کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لاہور کے علاقے شاہدرہ ٹیچنگ اسپتال کے مین گیٹ پر شہری بڑی تعداد میں سٹی اسکین مشین عرصہ 4 سال سے خراب ہونے کی وجہ سے شہری محکمہ صحت کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ اس وقت ہمارے نمائندے شہباز بھٹی شہریوں کے ساتھ موجود ہیں۔ شہباز، بتائیے گا کیا کہنا ہے شہریوں کا اس حوالے سے؟ اس وقت موجود ہوں لاہور کے علاقہ شاہدرہ ٹیچنگ ہاسپٹل کے مین گیٹ پر۔ شاہدرہ ٹیچنگ ہاسپٹل کو سالانہ اربوں روپیہ بجٹ دینے کے باوجود سٹی اسکین مشین عرصہ 4 سال سے خراب اور شہری سراپا احتجاج ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں، ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، انہی سے جانتے ہیں۔ جی بتائیے گا۔ السلام علیکم جی، سب سے پہلے تو میں میٹرو 1 نیوز چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سر، یہاں پہ تقریباً پچھلے 2 سے 2.5 سال سے سٹی اسکین مشین جو ہے وہ خراب پڑی ہے، تو سمجھ یہ نہیں آتی کہ حالات جیسے ہیں وہ حالات اس وقت آپ کے سامنے ہیں سب کے۔ تو پرائیویٹ اگر سٹی اسکین کرائی جائے تقریباً 4 سے 5 ہزار روپیہ اس کا ٹیسٹ کے چارجز لیتے ہیں۔ تو میری اعلیٰ اقدار والوں سے درخواست ہے کہ اس مشین کے حوالے سے کوئی پیش رفت کی جائے تاکہ جو غربت کے مارے شہری ہیں وہ آ کے یہاں پہ علاج اپنا کروا سکیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور شہری موجود ہے، ان سے جانتے ہیں کہ جب سٹی اسکین کروانے کے لیے ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو ڈاکٹر حضرات کیا جواب دیتے ہیں، کیا کہیں گے؟ السلام علیکم۔ ہم میٹرو 1 چینل کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے آج میری آواز سنی ہے۔ میں سٹی اسکین کروانے کے لیے گیا ہوں اندر، کہتے ہیں جناب سٹی اسکین مشین خراب ہے۔ وہاں کسی لڑکے سے بات کرتے ہیں کہ جناب یہ سٹی اسکین کروانا ہے، جی ہمیں 2000 روپیہ دے دو آپ کا سٹی اسکین ہو جائے گا۔ یہ کیسے مشین خراب ہے؟ یا یہ ڈاکٹروں کی نااہلی ہے، ادارے کی نااہلی ہے؟ بعد میں کہتے ہیں مشین خراب ہے، یہ ان کی نااہلی ہے۔ یہ پیسے کی خاطر سب کچھ ایسا کرتے ہیں۔ یہ اس کو ٹھیک کیا جائے، یہ سب کچھ نظام ٹھیک کیا جائے۔ یہاں پہ غریب عوام ہے، لاکھوں لوگ ہیں یہ مت فیکٹری کے اندر۔ کسی کو دماغ کے اندر کوئی وین بلاک ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ بن گیا ہے، اور دیکھتے جو پرائیویٹ کروانے 7000 روپے کا باجو ہاسپٹل سٹی اسکین کر رہا ہے، تو پھر یہ اسپتال بنانے کا کیا مقصد ہے؟ لاکھوں اربوں روپے کا یہاں پہ بجٹ ہوتا ہے، وہ بجٹ کہاں جاتا ہے؟ یا گورنمنٹ خود کھاتی ہے یا اسپتال والے کھاتے ہیں؟ ہمارے ساتھ ایک اور شہری موجود ہیں، آپ محکمہ ہیلتھ سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ السلام علیکم۔ میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد جو ہے نا یہ اسکین مشین ٹھیک کرائی جائے۔ آپ کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں جی حکومت پنجاب سے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب سے ہم گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد مشین جو ہے نا سٹی اسکین والی یہ ٹھیک ہونی چاہیے۔ جی بالکل، آپ نے شہریوں کی بات سنی۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ حکمرانوں کی نااہلی کی انتہا ہو چکی ہے کہ شہری در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور جو نااہل حکمران ہیں وہ اپنی عیش و عشرت میں اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں، اور ان کا یہی مطالبہ ہے کہ شہریوں کا سٹی اسکین مشین جلد سے جلد صحیح کروائی جائے اور شاہدرہ ٹیچنگ ہاسپٹل کو مزید سہولیات فراہم کی جائیں۔ جی رخ کریں گے شیخ پورہ کا، جہاں پر تجاوزات، سیوریج پائپ لائن کے بندش ہونے اور گلی میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی تحریری شکایت جرم بن گئی۔ ملزمان نے سینئر صحافی رانا مبشر لطیف کو گلی میں روک کر جان سے مارنے کی دھمکیاں دی، گالم گلوچ کی اور معززین نے سمجھانے کی کوشش کی تو ملزمان نے اندھا دھند ہوائی فائرنگ کر دی۔ علاقے میں خوف و ہراس پھیلانے کے بعد معززین پر حملہ کر کے اینٹیں مار کر ندیم خان کو لہولہان کر دیا اور دیگر معززین کو تشدد کر کے خوفزدہ کر دیا۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ بی ڈویژن پولیس ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے۔ ملک بھر میں بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے۔ حیدرآباد کے شہری بھی ہر چیز کی مسلسل بڑھتی ہوئی قیمتوں سے انتہائی پریشان ہیں۔ اسی حوالے سے شہریوں کا کیا کہنا ہے، حیدرآباد سے بتا رہے ہیں شاہزیب شیخ۔ بجلی مہنگی، تیل مہنگا، آٹا مہنگا، سبزی مہنگی، ہر چیز کی قیمتیں پاکستان میں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، مگر لوگوں کی آمدنی دن بدن زمین میں دھستی جا رہی ہے۔ حیدرآباد میں بھی شہری اس مسلسل بڑھتی مہنگائی سے عاجز آ چکے ہیں۔ سبھی چیز مہنگی ہے، کیا کیا بتائیں۔ آٹا مہنگا، سب سے زیادہ تو آٹے کی پریشانی ہے کہ گھر میں چلو آٹا ہو تو انسان کچھ بھی پکا کے کھا لے، بچوں کو کھلا دے۔ آٹا اتنا مہنگا، چینی اتنی مہنگی، کوئی آئے گیا بھی ہوتا اس کو بھی منہ نہیں دے سکتے۔ غریب آدمی نہیں کھا سکتا آٹا، غریب آدمی، اور چینی نہیں ہے، آٹا مہنگا ہے، دالیں مہنگی، ہر چیز مہنگی ہے، آئل مہنگا ہے، ہر چیز مہنگی ہے، کچھ بھی سستا نہیں ہے۔ مہنگائی ہو رہی ہے، وہ مہنگائی نہ ہوتا اچھا ہے خدا رہا۔ بچے معصوم ہیں بیچارے، صبح اسکول جاتے ہیں بھوکے پیاسے، ماں باپ کے پاس اتنا ہے نہیں، خودکشی اتنی کر رہے ہیں کہ کہہ نہیں سکتے۔ گھر کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، اس میں یہ عالم ہے ہمارے گھر کا کہ
आटा लाएं तो चीनी नहीं है, चीनी लाएं तो पत्ती नहीं है। हर चीज पे इतना दाम बढ़े हुए हैं कि बच्चों के लिए कुछ कर ही नहीं सकते। हैदराबाद के आम शहरियों के साथ साथ शहर के ताजिर भी महंगाई के बायस इंतहाई तशवीश में मुब्तला हैं। ताजिरों का भी कहना है कि एक जानिब हर चीज की कीमतों में इजाफा हो रहा है, दूसरी जानिब कारोबार में मंदी बढ़ती जा रही है और फिर पेट्रोल और बिजली की बढ़ती कीमत ने रही सही कसर निकाल दी है। जब हमारी तनख्वाह 25,000 है, हम 27,000 रुपए का बिल कैसे भर दें? कहाँ से भरें? लोग खुदकशियों में मजबूर हो गए। आए दिन खुदकशियों का रुझान हो गया है। लोग अपनी बीवियों का जेवर बेच के, घर वालों का जेवर बेच के, घर का सामान बेच के बिल भर रहे हैं। इसको वापडा से मुतालबा करते हैं, हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि हैदराबाद में इसको के नाजायज बिल फिर वापस किए जाएं। गरीब आवाम महंगाई के बोझ तले दबते जा रहे हैं। ताजिर भी इंतहाई तशवीश का शिकार हैं, जबकि निगरां हुकूमत है कि फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बढ़ाने का सोच रही है। कैमरामैन अजहर सिद्दीकी के साथ शादेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। उधर झंग में डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी की हिदायत पर चीनी ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैक डाउन किया गया। ज़िला इंतज़ामिया चीनी माफिया के खिलाफ सरगर्म है। असिस्टेंट कमिश्नर 18 हज़ारी ने छापा मार कर चीनी के 1650 बैग्स बरामद कर लिए। गैर कानूनी स्टॉक की गई चीनी बरामद करके 4 गोदाम सील कर दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर खिज़र रज़ाक ने खुफिया इतला पर छापा मारकर चीनी बरामद की, जबकि मजीद कार्रवाई के दौरान 3 दुकानदारों को 55,000 रुपये जुर्माना भी किया गया। बहावलपुर में भी बढ़ती हुई महंगाई की वजह से सब्ज़ी के रेट भी बढ़ चुके हैं। गरीब अफराद घर में सब्ज़ी बनाना भी मुश्किल समझ रहे हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर चौधरी रिजवान अशरफ से। रिजवान, बताइएगा क्या कहना है लोगों का महंगाई के हवाले से? महंगाई ने आम आदमी का जीना दोबर कर रखा है, वहीं उस तक आम सब्जियां भी पहुंच से दूर हो चुकी हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सब्जियों की एक दुकान पर। आइए लोगों से पूछते हैं कि वो इससे किस तरह गुजारा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है कि इतनी महंगी हो गई हैं सब्जियां। अब एक टाइम की जो सब्ज़ी ली है वो 400 रुपये की आई है। अब गरीब बंदा कहाँ से इतना अफोर्ड कर सकता है? जैसा कि आपको पता है, अब मटर का रेट देख लें, 480 रुपये किलो है मटर का रेट। और मैंने बैगन लिया 200 रुपये किलो का मिले हैं वो बैगन 1 किलो, और आलू 160 रुपये किलो। देखें, ये इतनी महंगाई में तो गरीबों का जीना मुहाल हो गया है ना। बिल्कुल, अब तो बहुत मुश्किल हो गई है घर चलाना। अजी, जैसा कि आपने सुना कि आम आवाम ये कह रही है कि महंगाई में लोगों का जीना दोबर हो गया और घर चलाना मुश्किल हो गया है। खानेवाल में डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत की जानिब से खाद महंगे दामों फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मज़ीद जान लेते हैं आमिर नसीर से। आमिर नसीर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर वसीम मोहम्मद सिद्धू की खसूसी हदायत पर डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की जानिब से महंगे दाम फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। तो बात कर ले डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत, सर बताइएगा जो महंगे दाम फरोख्त कर रहे हैं खाद, उन पर आप कार्रवाई कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितने जुर्माने आपने किए? जी बिल्कुल, इस वक्त चूँकि हमारी जो खरीफ की फसलात हैं जिसमें चावल और मकई है और किसी हद तक कपास की आखिरी जो है खाद यूरिया उस पर और जो बाकी नाइट्रोजनस खादें उनके हवाले से लोगों को चूँकि डिमांड है, तो हम अपने जो मुख्तलिफ असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर साहबान हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा एक डेडिकेटेड डैशबोर्ड बना हुआ है डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में, वहाँ से हमें डेली डिस्पैचेस आते हैं, हम उसको वेरीफाई करते हैं और उसके साथ जो फार्मर मुख्तलिफ किस्म की कंप्लेंट्स करते हैं उस हवाले से भी हम मुख्तलिफ किस्म की कार्रवाई करते हैं। एज ए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी कर रहे हैं और जो फर्टिलाइज़र कंट्रोल आर्डर है उसके तहत भी। और हम तकरीबन पिछले 1.5-2 माह में इसको 7 लाख तक जुर्माना कर चुके हैं। इसके अलावा 2 एक FIRs हमारी हो चुके हैं, जिसमें एक FIR जो है ना वो ओवर प्राइसिंग पे है। इसके अलावा जो फर्टिलाइज़र की क्वालिटी जिसे मयार कहते हैं उसको बरकरार रखने के लिए हम रैंडम सैम्पलिंग भी करते हैं ताकि जहाँ पे लोगों को मियारी खाद यकीनी बनाया जा सके मार्केट में कि दस्तयाब हो, उसके साथ साथ उसको जो गवर्नमेंट का नोटिफाइड रेट है उसकी जो फराहमी है उसको भी यकीनी बनाया जा सके। जी बिल्कुल, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का यही कहना था कि जो डीलर जो है वो खाद महंगे दाम पे फरोख्त कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला तेज़ी से जा रही है और इनका ये कहना था कि 7 लाख से ज़्यादा जुर्माना किया गया है और 2 FIR भी दी गई हैं। जी आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि नारोवाल में वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर बैनुल मज़हब हम आहंगी अनीक अहमद ने गुरुद्वारा साहब करतारपुर का दौरा किया है। वफाकी वज़ीर की जानिब से गुरुद्वारा साहब में कल्चरल पार्क का संग बुनियाद रख दिया गया है। गुरुद्वारा साहब करतारपुर में सिख मजहब
اور پنجابی کلچر کے رنگوں کو دنیا کے سامنے خوبصورت انداز میں پیش کرنے کے حوالے سے گرودوارہ صاحب کرتارپور میں کلچرل پارک کا افتتاح کیا گیا۔ وفاقی وزیر انیک احمد نے کرتارپور کوریڈور کا دورہ کیا اور گرودوارہ صاحب میں پودا بھی لگایا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے نگراں وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ گرودوارہ صاحب کرتارپور کی ڈیولپمنٹ سمیت تمام تر معاملات کے حوالے سے میری وزارت ہر وقت حاضر ہے۔ اور خبر دیں آپ کو، چنیوٹ پولیس نے خاتون سمیت 18 منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے 5 کلو سے زائد چرس اور 257 لیٹر شراب برآمد کر لی گئی۔ منشیات فروش ملزمان کے خلاف مختلف تھانوں میں مقدمات درج کیے گئے۔ مزید تفتیش کا عمل بھی جاری ہے۔ ڈی پی او عبداللہ احمد کا یہ کہنا تھا کہ اپنی نسلوں کو منشیات کی لعنت سے بچانے کے لیے معاشرتی ناصوروں کے خلاف کریک ڈاؤن مزید تیز کیا جائے گا۔ منشیات جیسی لعنت کے مکمل خاتمے کے لیے عوام کا تعاون بے حد ضروری ہے۔ جہلم کے علاقے تھانہ چوٹالہ میں زمیندار کو قتل اور 2 افراد کو زخمی کر کے بیرون ملک فرار ہونے والے ملزم کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ 2017 میں ملزم تصور حسین نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر فائرنگ کر کے 1 افراد کو قتل کر دیا تھا اور 2 افراد کو زخمی کر کے بیرون ملک فرار ہو گئے تھے، جس پر ایف آئی اے نے انٹرپول کے ذریعے ملزم کو ابوظہبی سے گرفتار کر کے تھانہ چوٹالہ پولیس کے حوالے کر دیا۔ ڈی پی او جہلم ناصر محمود باجوہ کا کہنا ہے کہ قتل جیسی سنگین نوعیت کی وارداتیں کر کے ملک سے فرار ہونے والے ملزمان کی گرفتاریوں کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لا رہے ہیں۔ ایڈیشنل ایم ایس ٹیچنگ اسپتال ڈاکٹر حفیظ الرحمان کہتے ہیں کہ پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن سے وابستہ صحافیوں اور ان کی فیملیز کو علاج معالجہ کی صورت میں علیحدہ رومز اور مکمل تعاون کیا جائے گا۔ مزید دیکھتے ہیں ڈیرہ غازی خان سے یہ خصوصی رپورٹ۔ ایڈیشنل ایم ایس علامہ اقبال ٹیچنگ ہاسپٹل ڈیرہ غازی خان ڈاکٹر حفیظ الرحمان کی خصوصی دعوت پر صدر جنوبی پنجاب پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن شیخ رمضان ندیم کی وفد شاہد فیض راجپوت، محمد عرفان المانی، ملک ایاز کوکر، غلام مصطفیٰ کے ہمراہ خصوصی ملاقات۔ ہسپتال پہنچنے پر شیخ رمضان ندیم کا زبردست استقبال، پھولوں کے گلدستے پیش کیے گئے، عمرہ کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کی گئی۔ اس موقع پر ایڈیشنل ایم ایس ڈاکٹر حفیظ الرحمان، ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے سینئر رہنما ڈاکٹر علی اصغر و دیگر ڈاکٹرز نے پی جے وفد کے ساتھ خصوصی گفتگو کی اور ہسپتال آنے پر ویلکم کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر حفیظ الرحمان نے کہا کہ معاشرے کی اصلاح میں صحافیوں کا اہم کردار ہے، ہمیں مل جل کر معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پی جے کی صحافتی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ نیز انہوں نے صدر جنوبی پنجاب شیخ رمضان ندیم کی درخواست پر فوری فیصلہ کرتے ہوئے کہا کہ پی جے کارڈ ہولڈر صحافیوں اور ان کی فیملیز کے لیے علاج معالجے پر خصوصی توجہ دی جائے گی اور علیحدہ روم دیے جائیں گے، نیز ہر قسم کا تعاون کیا جائے گا۔ رپورٹ شیخ رمضان ندیم، ڈسٹرکٹ رپورٹر میٹرو 1 نیوز، ڈیرہ غازی خان۔ کبیر والا پیٹرولنگ چیک پوسٹ نڈول نے اپنی ماہانہ کارکردگی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ انچارج ندیم جاوید نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ 2 اشتہاری ملزمان کو گرفتار کیا اور 6 مختلف مقدمات چوری، ناجائز اسلحہ اور اوور اسپیڈنگ اور ایل پی جی کے درج کیے گئے۔ 3408 افراد کی ای ایپ کے ذریعے چیکنگ کی گئی، جبکہ 735 افراد کے چلان کیے گئے۔ 1232 موٹر سائیکلوں کو چیک کیا گیا، جن میں سے 2 چوری شدہ موٹر سائیکلیں برآمد ہوئیں، 48 موٹر سائیکلیں بند کی گئیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ خانیوال تھانہ سٹی کی حدود میں ڈکیتیوں کا سلسلہ تھم نہیں سکا۔ ڈسٹرکٹ جیل میں تعینات سینئر ڈاکٹر چودھری کی گاڑی چوری ہونے کی فوٹیج میٹرو 1 نیوز نے حاصل کر لی۔ خانیوال سینئر ڈاکٹر سعید چودھری ڈسٹرکٹ جیل ڈیوٹی کے بعد نجی فاؤنڈیشن ڈسپنسری میں ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے کہ نجی فاؤنڈیشن ڈسپنسری کے باہر کھڑی گاڑی نامعلوم چور چوری کر کے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ واردات کی فوٹیج میٹرو 1 نیوز نے حاصل کر لی۔ فوٹیج میں نامعلوم چوروں کو کار چوری کرتے ہوئے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ خانیوال میں بڑھتی ہوئی وارداتوں کے باعث شہر میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ شہریوں کا اعلیٰ افسران سے شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مطالبہ بھی سامنے آیا ہے۔ قصور کے نواحی گاؤں کل میں بجلی چوروں نے لیسکو ٹیم کو اغوا کے بعد تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ہے۔ یاسین، اشرف اور 6 نامعلوم ملزمان کے خلاف تھانہ کنگن پور پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش بھی شروع کر دی ہے۔ ایس ڈی او لطیف کا کہنا تھا کہ زرعی ٹیوب ویل پر بجلی چوری پکڑی جانے پر ملزمان نے لیسکو ٹیم کو اپنی حویلی میں گن پوائنٹ پر اغوا کیا اور ڈنڈوں، سوٹھوں، آہنی راڈز اور مکوں سے مبینہ تشدد کا نشانہ بنایا۔
जबकि मोबाइल फ़ोन, नकदी और दीगर सामान भी चोरी कर लिया। थाना कंगनपुर पुलिस ने जाए वक़्वा पर पहुंचकर 5 मग़वियों को मुलज़िमान से बाज़ियाब करवाया और लहस्कों के ज़ख्मी मुलाजमीन को रूरल हेल्थ सेंटर कंगनपुर मुंतकिल किया, जहां इलाज मुआवजा जारी है। बात करेंगे तर्जुमान के इलेक्ट्रिक उवैस वंशी की, जिनका कहना है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से कुंडों और नादहिंदगान के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयाँ जारी हैं। कि इलेक्ट्रिक ने रवां साल 9 माह के दौरान 14,000 से ज़ायद कार्रवाइयाँ की हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर 60 से ज़ायद कार्रवाइयाँ की जाती हैं। कार्रवाइयों के दौरान 1,30,000 किलो गैर कानूनी हज़ारों कुंडे हटाए गए हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हाल ही में मुल्क भर में बिजली चोरी के खिलाफ एक बाकायदा सख्त मुहिम का ऐलान किया गया है, जिसके बाद तमाम पाकिस्तान की बिजली तकसीम कार कंपनीज जो हैं मुख्तलिफ टास्क फोर्सेस को तश्कील देती नज़र आ रही हैं और बिजली चोरी के खिलाफ अपना क्रैकडाउन उन्होंने शुरू कर दिया हुआ है। इस हवाले से के इलेक्ट्रिक भी पूरे साल मुतहरक रहता है और हमारा अमला 24 घंटे की बुनियादों पर कुंडों और गैर कानूनी कनेक्शन के खिलाफ अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखता है। मैं अगर आपके साथ मिसाल शेयर करूँ तो साल के आगाज़ से अब तक तकरीबन 14,000 कुंडा रिमूवल ड्राइव्स पूरे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कंडक्ट की गई हैं। यानी रोज़मर्रा की बुनियाद पर तकरीबन 60 मुख्तलिफ मुकामात पर कुंडों को हटाने का मुहिम हम लोग जारी रख रहे हैं। मजमूई तौर पर इस वक्त जो हमारे एस्टिमेट्स हैं उसके मुताबिक जो वज़न है इन कुंडों का जो हटाए गए हैं वो 1,30,000 किलोग्राम से भी ज़्यादा मालूम हो रहा है। ये गैर कानूनी कनेक्शन ना सिर्फ हमारे बिजली के निज़ाम के जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं उनको बाईपास करते हुए इलाके मकीनों के लिए एक सेफ्टी हैजर्ड पैदा करते हैं, बल्कि साथ ही साथ जो इलाके में लाइन लॉसेस हैं उनकी शरह बढ़ाने में भी इनका बहुत बड़ा किरदार होता है, जिसके अगेंस्ट बिजली की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाना इदारे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हम मुस्तकिल बुनियादों पर कोशिश कर रहे हैं कि इन गैर कानूनी कुंडों के खिलाफ और गैर कानूनी कनेक्शंस के खिलाफ अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखें, क्योंकि जैसे जैसे बिजली की चोरी की शरह में कमी आती है और साथ ही साथ बिलों की अदायगी की शरह में बेहतरी आती है तो इलाके के अंदर बिजली की फराहमी को बेहतर बनाने में भी इदारे को फरोग मिलता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि मिंजनाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले PTI के साबिक सूबाई वज़ीर मियाँ शौकत अली लाली का इंतकाल कर गए। इस्लामाबाद मोटरवे पर गुज़श्ता रोज़ रोड एक्सीडेंट में उनकी बीवी मौके पर वफ़ात पा गई थीं और उनकी नमाज जनाजा उनके आबाई गाँव चक अमीर लालिका में अदा कर दी गई थी। साबिक सूबाई वज़ीर पंजाब मियाँ शौकत अली लालिका शदीद ज़ख्मी हो गए थे, जो ज़ख्मी हालत में लाहौर के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। शदीद चोटों की वजह से आज साबिक सूबाई वज़ीर मियाँ शौकत अली लालिका भी वफ़ात पा गए। रुक करेंगे बिहाड़ी का, जहाँ पर मनशियात ज़फ़र हुसैन, मुश्ताक और नूर हसन ने कुरान पाक पर हलफ उठाकर मनशियात फरोशी से तौबा कर ली। मोअज़्ज़िज़ीन इलाका के लोगों ने मज़ीद कहा कि DPO बिहाड़ी मोहम्मद ईसा खान सुखेरा से गुजारिश है कि जो मनशियात फरोशी से तौबा कर चुके हैं उन्हें बिलावजह तंग ना किया जाए। अगर वो मनशियात फरोशी करेंगे तो हम खुद पकड़ कर पुलिस के हवाले कर देंगे। मोअज़्ज़िज़ीन इलाके के लोगों में नंबरदार मोहम्मद यासीन, हाजी विलायत हुसैन चौधरी, मोहम्मद अली, महर हसन खान, हाफिज अल्लादित्ता, हाजी हैदर, महर सज्जाद हुसैन, महर अफजल, महर सफदर, महर सईद, शौकत अली, महर खमीसा, मौलवी हफीज़, महर अमीर, महर शरीफ, महर शहजाद, महर इरशाद, महर अल्लाह रखा, महर शौकत करमपुर, महर अब्दुल गफ्फार, महर गुलाम रसूल और महर मुश्ताक दीगर शामिल थे। और अब आपको बताते हैं कि टीम यूनाइटेड प्रेस क्लब तलम्बा ने सदर सैयद अल्ताफ़ हैदर शाह की क़यादत में निजी फाउंडेशन का दौरा किया है। उनका इस्तकबाल फाउंडेशन के CEO मौलाना एहतशाम और मौलाना उसामा शौकत ने किया। फाउंडेशन की जानिब से जारी तालीम, सेहत और दीगर प्रोग्राम, साफ़ पानी मनसूबा, जहेज़ स्कीम, सैलाब के दौरान झलमक्सी में 600 घरों की तामीरात और दीगर वेलफेयर के कामों को खूब सराहा गया। निजी फाउंडेशन का मनसूबा एक नेमत से कम नहीं है।
जेलों में आवाम को ट्रैफिक कवानीन से आगाही फराहम करने के लिए आगाही वॉक और रैली का एहतमाम किया गया। रैली की क़यादत DSP पेट्रोलिंग जेहलुम सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट सब इंस्पेक्टर अदनान इकबाल ने की। रैली के शुरका ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर ट्रैफिक कवानीन से आगाही और अमल दरामद की हिदायत दर्ज थी। इस मौके पर DSP पेट्रोलिंग सैयद जुल्फ़िकार गिलानी का कहना था कि रैली का मकसद आवाम को ट्रैफिक कवानीन से आगाही और मुमकिन हादसा से बचाव का शऊर उजागर करना है। और अब आपको बताते हैं कि जंड के नवाही गांव का रेलवे स्टेशन फंक्शनल न होने से अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना है। काबुल का रेलवे स्टेशन कुछ अरसे पहले तक फ़ाल रहा, लेकिन अचानक अमले को दूसरे स्टेशन पर तैनात करके सर्विसेज को ख़त्म कर दिया गया है, जिससे अंग्रेज़ दौर में बनाई गई स्टेशन की तारीख़ी इमारत तबाह होने लगी और रेलवे क्वार्टर्स भी खंडरात का मंजर पेश करने लगे हैं। काबुल ढोक, मरमकी और ढोक ठारोड और दीगर इलाके के लोगों का अमला तैनात करके स्टेशन को बहाल करने और दीगर सहूलियात, पीने का पानी, वॉशरूम समेत तमाम सहूलियात फराहम करने के अलावा रावलपिंडी से मुल्तान जाने वाली महर एक्सप्रेस के स्टॉप की बहाली का भी मुतालबा किया जा रहा है। हारूनाबाद के नवाही गांव में मुबैना तौर पर ज़मीन के तनाज़े पर जेट ने फायरिंग करके भाभी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने जैबुकों पर पहुंचकर लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि मुलजिम फरार हो गया। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। मकतूला साजिदा 3 बच्चों की मां है। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि कहरोड़ पग्गा में दरिया सतलुज में आने वाला ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला सब कुछ बहा कर ले गया है। 10,000 एकड़ से ज़ायद ज़रई रकबा डूब गया, जबकि मुतादिद मौज़ूआ जात ताहाल पानी की लपेट में आ गए हैं। सैलाब से मुतासरा 5,000 से ज़ायद जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया, जबकि 24,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। सैलाब के पेश नज़र कहरोड़ पग्गा सैलाबी रेले से 10 मौज़ूजात मुकम्मल और 10 मौज़ूजात जुज़वी तौर पर तबाह हैं। सैलाबी रेले से कोट कोड़ा, गोट शाह मोहम्मद, टोका मक्खी, हस्सा जोया और चक्री बलोचा समेत मुतादिद मौज़ी ताहाल पानी की लपेट में हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में 150 से ज़ायद रेस्क्यू एहलकारों ने 11 बोट्स के साथ हिस्सा लिया, जबकि पंजाब पुलिस के 120 से ज़ायद एहलकारों ने सैलाबी इलाकों में फंसने वाले लोगों की मदद की। रुक करेंगे पतौकी का, जहां पर मेगा रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार होकर खंडरात में तब्दील हो चुका है, जिसकी वजह से यहां से गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जान लेते हैं आमिर अली मलिक से। आमिर अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पतौकी के मशहूर शहरा मेगा रोड पर, जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है और यहाँ से गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, मजीद इनसे जान लेते हैं इनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, जिस तरह तुम दस रहे जी कि बड़ी मशहूर हैगी मेगा रोड, दर्जना दहातां मिलाने वाला वाहद एक रोड है, लेकिन कई अरसा दराज तो ये टुटिया पुटिया पिया है, कोई इनू बनाने वास्ते नहीं आ रहा। जो कोई आला काम आंदा लेकिन निगाह मार के चले जाते हैं, इस रोड को कोई बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। और रोड टुटने की वजह तो जिन्ने भी दुकानदार सब फारग बैठे हैं, सारा कारोबार ठप हो गया है। और कोई अक्सर दुकानदार ऐसे ने जो अपना कारोबार बंद करके इतों किसी होर जगह से हिजरत करके चले गए हैं, तो साडा कारोबार बिल्कुल तबाह हो गया सिर्फ रोड की वजह तो साड़ी अल्लाह हुकाम दे अगे अपील है कि फौरी तौर पर नोटिस लैके तो इस मेगे रोड का काम जल्दी शुरू किया जाए, ताकि मजीद जो ताजर हजरात ने बेरोज़गार ना हो सकन। जी आपने शहरी के तासरात जाने, इनका यही कहना है कि हर दौरे हुकूमत में मेगा रोड के साथ जो सतीली माह जैसा सलूक किया गया है, इसलिए इनका आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा है कि नोटिस लेकर रोड को जल्द से जल्द बनाया जाए। जी जतोई पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी मिकदार में विलायती शराब बरामद कर ली है। मुजफ्फरगढ़ के थाना जतोई की हदूद में मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करके 210 बोतलें विलायती शराब बरामद कर ली गईं।
DPO मुजफ्फरगढ़ सैयद हसनैन हैदर की हिदायत पर SHO जतोई अदनान शहजाद कुरैशी ने अपनी टीम के हमरा बड़ी कार्रवाई करते हुए विलायती शराब की बड़ी खेप पकड़ ली है, जबकि 2 मुलजमान को गिरफ्तार करके थाना जतोई में मुकदमा दर्ज कर लिया। जबकि SHO अदनान शहजाद कुरैशी ने कहा कि मंशियात फरोशी किसी सूरत रियायत के मुस्तहिक नहीं है, क्योंकि मंशियात फरोश नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हैं। पुलिस थाना सदर सराय आलमगीर ने शराब सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया। थाना सदर सराय आलमगीर मनशियात फरोश जुहेब को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जे से 10 लीटर शराब बरामद की। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। थाना कैंट के इलाके भागो भट्टे में पुलिस कांस्टेबल इंजमामुल हक की शहादत में मुलव्विस खतरनाक मुलजिम हलाक हो गया है। पुलिस के छापे के दौरान मुलजिम ने साथी के हमरा पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में मुलजिम अजीम और लाल दीन हलाक हो गया। मुलजिम ने 11 रोज़ कबल पुलिस कांस्टेबल इंजमामुल हक को फायरिंग करके शहीद किया था। खतरनाक मुलजिम डकैती, राहज़नी कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी जैसे संगीन मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता और पुलिस को मतलूब था। मुलजिम का दूसरा साथी अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए फ़रार होने में कामयाब हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। सेवन शरीफ दरगाह कलंदर लाल शहबाज के गोल्डन गेट के करीब पुलिस एहलकार ने शहरी पर तशद्दुद किया। शहरियों की मदाखलत पर पुलिस एहलकार ने शान अली को तशद्दुद करने के बाद छोड़ दिया। पुलिस एहलकार के तशद्दुद का निशाना बनने वाले नौजवान शान अली का एहतजाज में मजदूरों करके कहना था कि घर चला जाता हूं और पुलिस एहलकार भत्ता वसूल करने आया। भत्ता न देने पर तशद्दुद किया। पुलिस एहलकार ज़मीर अहमद ने ज़बरदस्ती मोटरसाइकिल पर बिठाया और नाबालिग मुकाम पर मुंतकिल करने की कोशिश की। पुलिस एहलकार ने पिस्टल के बट मारे, जान से मारने की धमकियां भी दी। पुलिस एहलकार ज़मीर अहमद ने खुलेआम पुलिस गर्दी की। वाक़े का नोटिस लेकर इंसाफ फराहम किया जाए। और अब आपको बताते हैं कि सिंध भर से अगवा होने वालों की बाजियाबी के लिए गंबट में सिंध यूनाइटेड पार्टी और धरती तहरीक की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने सिंध भर से अगवा होने वाले मुखबियों को बाजियाबी का मुतालबा भी किया है। गंबट में सिंध यूनाइटेड पार्टी और धरती धनी तहरीक की जानिब से फूल बाग से लेकर गंबट प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें सियासी समाजी रहनुमाओं समेत सिविल सोसाइटी के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन ने आर्मी चीफ, DG रेंजर सिंध, IG सिंध और आला हुकाम से सिंध भर से तमाम अगवा होने वाले बेगुनाह शहरियों की बाजियाबी और अगवा इंडस्ट्री के खात्मे का मुतालबा किया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जाम शोरों में अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से कोठरी में मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया गया। तिबी कैंप मुकामी स्कूल में लगाया गया था, जिसमें इलाका मकीनों को मुफ्त अद्वियात के साथ दीगर तिबी सहूलियात भी फराहम की गईं। मुफ्त तिबी कैंप में सैकड़ों खवातीन, मर्द और बच्चों ने इलाज मुआवजा की मुफ्त सहूलत से इस्तिफादा हासिल किया। तिबी कैंप पर अल खिदमत फाउंडेशन खवातीन विंग की सदर समीना शहजाद, शगुफ्ता साजिद और इकरा तहसीन समेत डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी मौजूद था। तिबी कैंप का मकसद गरीब और नादार अफराद को मुफ्त इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम करना था। पसमानदा इलाकों में अल खिदमत की जानिब से मुफ्त तिब्बी सहूलियात के साथ तालीमी और दीगर सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। अल खिदमत पाकिस्तान का मकसद पाकिस्तान में यकसा इस्लामी निज़ाम राइज करना है। और अब आपको बताते हैं कि पीर साहब पगारा थले शरीफ के नज़दीक खेल के मैदान को महकमा बल्दिया की नाअहली ने कचरे के ढेर में तब्दील कर दिया है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं सांगढ़ से हमारे नुमाइंदे हमजा बशीर खोकर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सांगढ़ पीर साहब पगारा थले शरीफ के नज़दीक खेल के मैदान पर। इस खेल के मैदान को हुकूमत सिंध और महकमा बल्दिया की नाअहली ने कचरे का ढेर बना दिया। हुकूमत सिंध के दावे धरे के धरे रह गए। खेलेगा सिंध तो सेहतमंद होगा सिंध, ये फ़कत एक नारा ही रहा। खेल के मैदान के चारों तरफ आबादी ही मौजूद है। इस खेल के मैदान पर लोग मरे हुए जानवर, जिसमें गाय, बकरी, चूहा, कुत्ते वगैरह फेंक कर चले जाते हैं।
कोई पूछने वाला नहीं है। खेल के मैदान के कचरे को महकमा बल्दिया की तरफ से आग भी लगा दी जाती है, जिसकी वजह से खतरनाक और शदीद धुआं फैलता है और बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर यहाँ से कचरा ना खत्म किया गया तो यहाँ के इलाका मक्की बहुत सी मूजी बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। यहाँ बच्चे क्या बड़े भी खेलने से अब घबराने लगते हैं। यहाँ के मुकामी लोगों ने हुकूमत पाकिस्तान से बल्दिया की इस नाअहली का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी। टंडोला यार्ड में वाटर टैंक मंसूबा करप्शन की नज़र हो गया। वाटर टैंक मंसूबा करप्शन की नज़र हो गया। सिर्फ नीचे का ढांचा बना के छोड़ दिया गया। टैंक के अंदर कचरा भरा हुआ है, जबकि नशेई लोगों की आराम गाह भी है। लोग अपने मवेशी बांध रहे हैं। आवाम के टैक्स का पैसा कचरे की नज़र हो गया। वाटर टैंक मंसूबा शहर से तकरीबन 10 फीट नीचे है। मंसूबे को शहर से ऊंचाई पर बनाया जाना चाहिए था। गलियों में पाइपलाइन बिछाई गई थी, ज़्यादातर चोरी हो गई। थोड़ी बहुत बची है, ध्यान ना दिया गया तो वो भी चोरी हो जाएगी। लोगों को साफ पानी पीने को मुयसर नहीं। ज़मीन का पानी पीने पर मजबूर है, जो कि फ़िल्टर नहीं, जिससे हाई ब्लड प्रेशर, दिल की और मुख्तलिफ अक़साम की बीमारियों में लोग मुब्तला हो रहे हैं। कई सालों से काम रुका हुआ है। और अब आपको बताते हैं कि लाड़काना में वफाकी वज़ीर बराए एनर्जी और CEO सेबको की हिदायत पर सेबको इंतज़ामिया एक्शन में आ गई है। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सेबको लाड़काना अब्दुल गफ्फार माका की क़यादत में कंबर के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किया गया। CEO के मुताबिक ऑपरेशन में 500 से ज़ायद डायरेक्ट कुंडे मुनक़ता करके तारें जब्त कर ली गईं। बिजली चोरों और डिफ़ॉल्टरों से 10 लाख की वसूली करके 3 गैर कानूनी ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए। मुख्तलिफ सब डिवीजन्स के SDOs और लाइन सुपरिटेंडेंट ने भी स्टाफ के हमरा कुंडे तारी काटी हैं, जिससे किसी भी कीमत पर बिजली चोरों को बख्शा नहीं जाएगा। मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं। और यहाँ आपको खबर दें कि महकमा तालीम मीरपुर खास की जानिब से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन डॉक्टर चमन मंशा की क़यादत में प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। रैली में रीजनल हेड सिंध एजुकेशन फाउंडेशन निसार अहमद, मेमन असातिज़ा और तलबा तालबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ख़वानगी के आलमी दिन के मौके पर निकाली जाने वाली रैली से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन डॉक्टर चमन मंशा ने कहा कि 8 सितंबर को हर साल दुनिया में ख़वानगी का आलमी दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद हर बच्चे को तालीम के जेवर से आरास्ता करना है, ताकि वो माशरे के अच्छे फ़र्द बनकर माशरे की तरक्की, अमन व अमान और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। सिंध हुकूमत की जानिब से तैनाती के नोटिफिकेशन के बाद नए डिप्टी कमिश्नर मटियारी लाल डिनू मंगी ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। DC ऑफिस के अफसरान और अमले से तारुफी मीटिंग करते हुए उन्होंने कहा कि मटियारी ज़िले में जो भी मसाइल होंगे उनको आप सब के ताउन से हल करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो बहुत जल्द ज़िला का दौरा करके इंतज़ामी अमूर का जायज़ा लेंगे और जिस भी इदारे की ख़राब कारकर्दगी पाई गई उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर सेक्रेटेरिएट का दौरा किया और सफाई सुथराई का जायज़ा लिया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 मंजूर लगारी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 सैयद जुनैद शाह, स्टाफ ऑफिसर आफाक अहमद अंसारी, शफीक मेमन और दीगर अमला मौजूद था। उमरकोट के महल्ले अमीराबाद में ख्वाजा सरा ने बीमारी और मौशी परेशानियों से तंग आकर खुदकुशी कर ली। ख्वाजा सरा फ़कीर कमर काफ़ी अरसे से दिल, हाई ब्लड प्रेशर और शुगर के अमराज में मुब्तला था। पुलिस के मुताबिक लाश को ताल्लुका अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कानूनी कार्रवाई के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दी जाएगी। 8 साल से रिहाइश पजीर था और मांग तांग कर गुजर बसर कर रहा था। ख्वाजा सरा फ़कीर कमर हालिया बल्दियाती इंतखाबात में सारमारो टाउन कमेटी की मखसूस नशिस्त पर कौंसलर मुंतखब हुआ था। और अब आपको बताते हैं कि जंग में मीसाक सेंटर अक़लियती बिरादरी के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतहरिक है। सिख कैबिनेटी के मसाइल और साहिल जसपाल सिंह की दरख्वास्त पर फौरी कार्रवाई की गई है। मज़ीद आपको बताएं कि हुसूल इंसाफ के लिए आए शहरी जसपाल सिंह ने बर वक्त कार्रवाई पर इजहार तशक्कुर किया। DPO जंग मलिक तारिक महबूब का कहना है कि IG पंजाब के विजन के मुताबिक अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ तरजीही बुनियादों पर जारी है। पुलिस मीसाक सेंटर के ज़रिए अमन बर्दाश्त, मजहबी रवादारी और बाहमी एहतराम के रवैयों के फ़रोग़ पर भी मेहनत कर रही है।
शहरनामे से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा।